Hello friends, this is Tavinder Singh, teacher at Jagran Public School, Lucknow. Today I am going to present a lecture on income determination and multiplier part 3. If you have not watched the first and the second video of this chapter, I may suggest that please go to that videos, watch those first, get understanding, then come to this video for a better understanding of this video. Let's start. The topics covered here in this video is investment multiplier, working of investment multiplier and numerical. So, investment multiplier is a concept given by Professor John Maynard Keynes. What is the concept of multiplier? Now, there are two things which we need to remember, that is there are two types of demand, consumption demand and investment demand. Consumption demand, the money which we spend on consumption purposes, and investment demand, the money which we spend on the assets to generate some amount of income. So, investment multiplier is a concept which is given by Professor Keynes. It shows that how much there will be change in investment due to change in income, means income में कितना change आएगा investment की वजह से. The formula is K is equals to delta Y upon delta I. So, as the formula shows, how much there will be change in income due to change in investment. Like suppose we do an investment of rupees 100 crores, right? So, it depends upon the value of multiplier that by how much the income will change. Investment multiplier is denoted by letter K as it is provided by Keynes. That is why the sign for this is letter K. The value of the multiplier depends upon the marginal propensity to consume. Now, delta Y is equals to change in income, delta I is equals to change in investment. So, as I said, the value of the multiplier depends upon the marginal propensity to consume, that is the rate of change in consumption. जितना ज़्यादा consumption होगा उतना ज़्यादा income में multiply होने के chances बढ़ेंगे, right? So, K is equals to 1 upon 1 minus MPC. Like suppose if I say MPC is equals to 0.8, 80%, 80 upon 100, right? So, if we put the value of the 0.8, then the value of the multiplier will be 1 minus 0.8 is 0.2, 10 divided by 2 is 5. So, we can say that the multiplier will be 5, and if the value is 0.4, then the value is 1 minus 0.4, or we take 1.2 over here, that is 0.8. So, answer will be 5, 2.5, right? So, as we see that if the value of the consumption MPC decreases, the value of multiplier will also decrease. So, we can say that the value of multiplier is directly proportional to marginal propensity to consume. Okay. Let's move on to other topic. What is investment multiplier mechanism? We can understand with the help of the table how the multiplier works. So, round delta I, delta Y, delta C, that is delta I is change in investment, delta Y is change in income, delta C is change in consumption and savings. In round first, suppose Reliance do an investment of rupees 10,000 crores, okay, or we take a lesser value, that is 1000 crores. Then if Reliance do an investment of rupees 1000 crores, then obviously he will spend on the investment on the purchasing of machinery, labor, wages, that it will be the income of some other person, right? 1000 crore will be the income of some other person if Reliance do an investment of rupees 1000 crores. Obviously, then this 1000 crore will consume by some other person. Let's suppose the rate of change in consumption is 0.8, that is 80%. That means the 80% of the income would be consumed. So, MPS will be 0.2 if MPSC is 0.8. So, 1000 multiplied by 0.8, the consumption will be 800 crores, right? And the saving would be 200 crores. Like suppose who generated an income of rupees 800 crores from Ambani and doing consumption of 800 crores, that would be income of some other person. अगर 800 करोड़ रुपए किसी ने खर्च किए हैं तो वो किसी न किसी की नेक्स्ट राउंड पे क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, जिनसे उन्होंने सामान खरीदा होगा. अब हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, 800 करोड़ की इनकम हो गई हमारी. अगेन 80% ऑफ 800 करोड़ इज 640, क्योंकि अब जिसने 800 करोड़ कमाए
वो भी तो कंज्यूम करेगा, लेकिन वो पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, वो कुछ पार्ट सेव करेगा। दैट इज 160 उसने सेव कर लिया 800 में से और 640 कंज्यूम कर लिया। इन द थर्ड राउंड अगेन 640 वुड बी द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन्स। Now 80% of 640 is 512 and 128 would be the savings. This process will go on and on. ये कब तक चलता रहेगा? ये डिक्रीज होता रहेगा आपका इनकम, ये तब तक चलता रहेगा जब तक till then when the value of the investment is equals to total of the savings. Like जो 1000 आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो हमारा सेविंग्स के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस क्या होता रहेगा? कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है। So how to find that how much there will be the income? With the help of multiplier formula will do it. तो multiplier का formula लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है। K is equals to 1 upon 1 minus MPC। पहले multiplier की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 minus 1 minus 0.8 that is 1 upon 0.25। तो multiplier is value 5। K is equal to delta y upon delta I। Then the value of multiplier is 5। डेल्टा आई हम लोग को पता है 1000 करोड़ हमने लगाए हैं एंड इनकम कितनी आ जाएगी हमारी 5000 करोड़। सो इफ वी डू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1000 करोड़ द इनकम विल बी 5000 करोड़, द कंजम्पशन विल बी 80% दैट इज 4000 करोड़ एंड द सेविंग्स विल बी 1000 करोड़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ there are some few questions but let us first understand the formula which are we using in this. First formula is K is equals to delta y upon delta I, that is the formula of investment multiplier we already studied. Then the second formula is K is equals to 1 upon 1 minus MPC, क्योंकि MPC पे डिपेंड होता है मल्टीप्लायर की वैल्यू, एंड देन 1 upon MPS। अब ये MPS कैसे आया? एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो 1 में से MPC को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा MPS, इसलिए वहां पे MPS आया। द थर्ड फॉर्मूला इज APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MPC, ये कैसे फाइंड करेंगे? फोर्थ फॉर्मूला इज MPC इक्वल्स टू डेल्टा वाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस। ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इन द सेम वे MPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज APC equals to C upon Y and the next formula is APS is equals to S upon phi. Now let's consumption function पढ़ लेते हैं। C is equals to C bar plus small c y. Now what is C bar? C bar is autonomous consumption, that is the minimum level of consumption, right? At zero level income, जब आपकी इनकम जीरो होगी तब जो कंजम्पशन होगा वो ऑटोनॉमस कहलाएगा। एंड C that is coefficient to Y is MPC and the Y is disposable income। ठीक है। इन द सेम वे सेविंग फंक्शन होगा दैट इज ऑटोनॉमस सेविंग्स S बार प्लस SY। अब ऑटोनॉमस सेविंग हमारी हमेशा नेगेटिव होती है, क्यों? क्योंकि हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया है, तो कहीं ना कहीं से बोरो किया होगा, इसलिए सेविंग हमारी नेगेटिव हो जाएगी। स्मॉल s कोफिशिएंट टू y इज MPS and y is disposable income, that is saving function. Now we know that ninth formula is y is equal to C plus S. Like suppose we have done income of 100, we consume 80 rupees and we save 20 rupees obviously. So the part of income which is not consumed is saving. If you can say that economy is in equilibrium, अगर क्वेश्चन में बोल देता है इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में, सो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमें पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, y इज इक्वल टू C प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे सेविंग की जगह पे आई आ जाएगा। एंड इन द सेम वे चेंज इन इनकम जो होगा, जैसे y इज इक्वल टू C प्लस एस होता है, तो चेंज इन इनकम भी हमारा चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग का समेशन होगा। नाउ लेट्स ऑन टू द मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट। शुड वी डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स नाउ? ओके फाइन। Now the first numerical is give MPC is 0.9 and increase in investment is 1000 crores. You need to find the value of the multiplier and change in income. Okay, MPC हमारा 0.9 है और हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा है 1000 करोड़ से, हमें मल्टीप्लायर और इनकम निकालना है। बट एक बात समझ लीजिए कि जब भी न्यू लिखा होगा या फ्रेश लिखा होगा या इंक्रीज लिखा होगा, हमेशा इंक्रीज, न्यू और फ्रेश के थ्रू जो भी वैल्यू दे रखी होगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की है, वो रिप्रेजेंट किस करी जाएगी? डेल्टा साइन से। मतलब वो रिप्रेजेंट करता है
कि वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, जैसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है, ना कि वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी होगी, तो वो डेल्टा से रिप्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे एमपीसी कितना दे रखा है 0.9, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बोला ना, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 1000 करोड़। आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले के का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एमपीसी था, राइट। सो द फॉर्मूला फॉर द के is equals to 1/1 minus MPC, that is 1/1 minus 0.9, that is 0.1, 1 minus 0.9, that is you can say that 10, right? The value multiplies 10. अब सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें इनकम थी, क्योंकि हमें इनकम फाइंड करनी है। सो K is equals to डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. सो फॉर्मूला फॉर K की वैल्यू 10 है, इन्वेस्टमेंट हमारा गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़, राइट। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 1000 into 10 हमारा कितना हो जाएगा 10,000 करोड़। दैट हाउ वी डू इट, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, बट फर्स्ट वी क्लियर इट आउट, ओके। द सेकेंड क्वेश्चन इज इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, ठीक है, 60% ऑफ राइज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ओके। 60% जो है वो स्पेंड हो रहा है कंजम्पशन में इनकम का। अच्छा, राइज इन इनकम इज डेल्टा वाई। नाउ सपोज द सेम इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट राइजेस बाय 600 करोड़, ओके। आपको चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग्स निकालनी है, ठीक है। तो 60% आपको राइज इन इनकम दे रखा है, उसको स्पेंड हो रहा है कंजम्पशन पे, और इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो रही है 600 करोड़ से। चलो तो 6, अब एक फॉर्मूला बनाते हैं, 60% ऑफ राइज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई, है ना। राइज का मतलब डेल्टा वाई स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ओके। तो वो डेल्टा सी आ जाएगा 60/100 इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी। डेल्टा वाई नीचे चला जाएगा, 60/100 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है। तो आंसर एमपीसी का कितना आएगा 0.6 आएगा बेटा। एमपीसी की वैल्यू मिल गई। अब हम के की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, अभी वही फॉर्मूला लगा के जो पहले लगाया था। अच्छा, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से राइज हो रहा था 600 करोड़ से, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 600 करोड़। अब फॉर्मूला लगाते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1/1 माइनस 0.6, दैट इज 1/0.4, दैट इज 1 पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, 10 डिवाइड बाय 4 इज 2.5, ओके। अब k का दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि हमें इनकम निकालनी है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अगेन 2.5 k हो जाएगा हमारा, राइट। बट यहाँ पे हमें चेंज इन सेविंग्स निकाल लीजिए ना, तो पहले एमपीसी का फॉर्मूला देख लेते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अच्छा, चेंज इन सेविंग निकाली तो एमपीएस का फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ओके, ठीक है। तो एमपीएस कितना आएगा 0.6 आपका एमपीसी है, 1 में से 0.6 को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। बट उससे पहले भी हम लोग को डेल्टा वाई निकालना ही पड़ेगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ पुट कर दिया, के की वैल्यू 2.5 हो गई, मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, तो हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2050 आई सपोज 1500 करोड़, फाइन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 600 इंटू 2.5, 1500 आ जाएगा। फिर आपका एमपीएस निकाल लेते हैं, बिकॉज बिना इनकम के वो निकलता नहीं, इसलिए पहले हमने चेंज इन इनकम फाइंड करी है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस कर देंगे 0.6, तो एमपीएस हमारा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। एमपीएस 0.4 होगा, चेंज इन सेविंग्स हमारी कितनी हो गई, चेंज इन इनकम 600 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 0.4 से, तो हमारा चेंज इन सेविंग्स कितना आ जाएगा, सॉरी इनकम 1500 आई थी तो 1500 से मल्टीप्लाई होगा, तो चेंज इन सेविंग्स हमारा कितना आ जाएगा 1500.4 इज इक्वल टू 600 करोड़, ठीक है। तो डेल्टा एस हमारा कितना आएगा बेटा 600 करोड़ आएगा, फाइन। दैट हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। लेट्स क्लियर दिस व्हाइट बोर्ड, ओके। ठीक है, अब सपोज करिए कि एक इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें कंजम्पशन फंक्शन आपका दे रखा है 50 प्लस 0.5y, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, और यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए कि आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, ठीक है, या आपको इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, आपको 2000 करोड़ दे रखा है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कि
आपका सपोज करिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए बोलता है, तो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। तो आपका कंजम्पशन फंक्शन 50 प्लस 0.5 आई है, आपको यहाँ पे सी फाइंड करने के लिए बोला, कंजम्पशन फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करेंगे, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, तो y इक्वल टू सी प्लस एस हमारा फॉर्मुला होता है। अब इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो सेविंग की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पुट करेंगे, मैंने आपको पहले भी फॉर्मुले में बताया था। सो y इक्वल टू सी प्लस आई फॉर्मुला हो जाएगा। अब y की जगह पे y रहने दो, कंजम्पशन की जगह पूरा ये कंजम्पशन फंक्शन पुट कर देंगे 50 प्लस 0.5 y एंड इन्वेस्टमेंट वुड बी हमारा 2000 करोड़, राइट। अब क्या होगा, ये 0.5 उधर चला जाएगा तो y में से 0.5 माइनस कर देंगे। अब y के बगल में कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट उसका 1 होता है, राइट। 50 प्लस 2000 इज 2050, 1 में से 0.5 y माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 2050 देन y रह जाएगा, 2050 को 0.5 से हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, कितना आएगा फाइंड करके बताओ। So it would be 4100 करोड़, ओके फाइन, ओके। अब हमारा c फाइंड कर लेते हैं, फंक्शन में पुट करके 50 प्लस 0.5 y है, तो y की जगह पे y पुट कर देंगे जो निकाला है हमने 4100, मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये फिर से हमारा कितना आने वाला है 50 प्लस 2050 दैट इज 2100 करोड़। इज इट क्लियर, ओके फाइन। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, या ओके क्लियर ही कर लेते हैं, फाइन। नाउ सपोज c इज इक्वल्स टू, एक मिनट, c इज इक्वल्स टू 50 प्लस 100 प्लस 0.6y, ठीक है। अब हमको इससे मान लो सपोज करो सेविंग फंक्शन फाइंड करना है, तो हाउ विल, हमने बताया 100 क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट। इनकम हमारी जीरो होगी तो 100 कंज्यूम कर रहे हैं, अब कहां से कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग्स तो है नहीं हमारी, राइट। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन होगा, जब सेविंग्स है ही नहीं, इनकम है ही नहीं, तो बोरो करना पड़ेगा, तो सेविंग उतने ही अमाउंट से माइनस हो जाएगी, तो -100 हमारा ऑटोनोमस सेविंग हो जाएगी। एनीथिंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, और सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस सेविंग। तो हमारा सेविंग फंक्शन में ऑटोनोमस अगर 100 है कंजम्पशन तो -100 हमारा ऑटोनोमस सेविंग्स हो जाएगा। एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस हमारा 0.4 आ जाएगा, कैसे, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है 1 होता है ना। तो 1 में से एमपीसी की वैल्यू 0.6 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो हमारा 0.4 एमपीएस आ जाएगा, ये आपका सेविंग फंक्शन आ गया। बड़ा सिंपल है, अगर आपको कंजम्पशन 100 दिया हो तो ये ऑटोनोमस सेविंग -100 हो जाएगी, फिर आपका 0.6 को आप 1 में से माइनस कर देंगे तो ये एमपीसी जो दिया हुआ है उसके थ्रू आपका एमपीएस निकल आएगा 0.4, आपका सेविंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। दैट हाउ वी डिराइव सेविंग फंक्शन फॉर द कंजम्पशन फंक्शन। अब सपोज हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, जहां पे कंजम्पशन हमारी इनकम के इक्वल होती है, सेविंग जीरो होता है, जितना कंज्यूम करोगे उतना खर्च कर दोगे, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। पुट करके देखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन पे 100 प्लस 0.6y इज इक्वल्स टू इनकम, y1 है, ऑब्वियस सी बात है, 100 में y में से 0.65 माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0.4, सो 100 इज इक्वल्स टू 0.4y, 100 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू y, तो कितना आ जाएगा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली, आई सपोज 250 आएगा, 0.4 हट जाएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 250 करोड़ आएगा, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी ब्रेक इवन नेशनल इनकम आ गई, यहाँ पे सेविंग कुछ भी नहीं है, ये हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं। और भी कुछ फॉर्मुलेस है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बुक से एक बार देख लीजिए, ठीक है। बुक से देखने के बाद आप सॉल्व करिएगा, यू कैन डू इट एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। थैंक यू so much. So that's all about income determination and investment multiplier. Thank you.